everybody present here. I am Kajal Chauhan from BGMC Department second year. और मैं हूँ रोशनी अहिरवार BGMC Department first year से. Today we are gathered here to celebrate National Youth Day. हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने के लिए. We welcome our honorable chief guest, respected director sir, dean sir, HOD sir, my respected faculties, and all my dear friends to this program. Now I request Sushil sir to please come on the stage for welcome note. Thank you everyone. Sisters and brothers of IMT family, you all are welcome here because these are the words which are sounding through a very well-known Indian famous philosopher and Vedant practitioner, that is Swami Vivekananda ji. Because he has pronounced these words in his Chicago Dharm Sansad, which was still remembered and they echo with a lot of vigor and enthusiasm. Okay. So on behalf of the entire IMT family, I am Sushil Shukla, Vice President, IIC Cell of IMT College of Management. This activity is IIC driven, and this is especially, we are highly privileged to celebrate this event as a National Youth Day because nowadays, you know, the youth is full of energy and enthusiasm, and without channelizing those energy, it is very difficult to get the goals which are set by the youth. So the initial requirement is to set the goal with the self-discovery and then chase those goals like the statement given by Swami Vivekananda, arise, awake and stop not until the goal is reached. So with this kind of note, I will not take much time. I am really welcoming our guest, who is Mr. Kanhaiya Kumar Goyalji. He is a 5 times GATE qualified, a college topper and engineering graduate. At the same time, he is connected to ISKCON just to have a holistic approach in his life. And as a youth icon of the entire country, he is spreading his wisdom, experience and knowledge all across the globe through his online sessions and offline sessions. So we are really privileged to have him here today, and he will definitely share his experiences to enlighten us. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद सुशील सर. तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हर्षवर्धन को कि वो मंच पर आकर अपने विचार प्रस्तुत करें. I'm here to talk about how, as a youth, we can contribute to the nation. As a misconception, we as a youth mostly think that we can only serve this nation by being a part of military or being a part of military. But as ma'am said to me earlier that to serve the country you don't need to be a part of military. You can be true to yourself and to your goals. You can be honest to yourself. You need to acquire the knowledge first. As a youth, the weapon, the knowledge is your weapon. And the youth is not just the future builder of the nation. It is the present architecture as well. So, as a youth, you can idealize yourself as Bhagat Singh. We can be the modern freedom fighters here. We can sacrifice. We don't need to sacrifice our life nowadays. We can sacrifice our greed, our comfort, our desires, which are eventually making us the slave in today's time. So, as a youth, we have a lot of potential and energy. We just need to channelize that, as Shukla sir already told us. Just the incident of Ramayana, as the squirrel was contributing to build the bridge to the Sri Lanka. The youth of today is just like that squirrel. We have that potential, and we have a specific role to build our nation. Thank you. Now I would like to call Vedant on the stage for his speech. A very warm good afternoon to our respected faculties and all the students and youths present here. My name is Vedansh Malhotra and I am from the BBA department, section D. And today I am going to give a speech about Vivekananda ji, some facts about him. Like
obviously we know how great he was as a personality, as a person, as a humanitarian. So I want to tell you some facts. So the first fact which I might be all be knowing or not knowing, his birth date mystique. Has anybody known about this? The birth date mystique. Like it is said that it is not exactly 12th January, which is celebrated as his birthday or the day of youth. Like his birthday is not exactly on 12th January. By some historians, it is told that it may be a few weeks earlier or later. It is not exactly known in some form or in physical form or in any proof. It is not exactly 12th January. It might be a few weeks earlier or later. One of the interesting fact also is a name change. His name was, from starting, his name was not Swami Vivekanand. His name was Narendranath Datta. His name was Narendranath Datta. When he was born, it was not Vivekanand. He got that title after when he joined all those spiritual activities and when he became a monk. Like he was a monk, he practiced those things and he was a special person. So after that, he got that title Swami Vivekanand. One more fact is the ice bath fact. Like in today's era, we know the people who do gym and all those things do ice bath for fashion and all for all those things, which is like in their routine part. But a great personality, obviously, as an Indian, Matrbhumi of India, or the person who has come from such country, as we know, India is a very developing country and people of strong country. He was in a like barren rock of ice for one day, one whole day, and he survived that because he wanted to check that his physical strength, like his physical strength or ability, that of how much strength he can just survive. So he was in the ice bath for one day at Kedarnath. So these were some facts. And okay, now coming to some basic things, like अगर मैं बात करूँ तो कैसे like स्वामी विवेकानंद जी की पर्सनालिटी आज की डेट में हमें मोटिवेट करती है, ऐसा क्या है जो हमने उनसे सीखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो वो हमारे एंसेस्टर्स, हमें मतलब वो है हमारे एंसेस्टर्स एंड हमें उनसे क्या ऐसा सीखने को मिला है. हम सबको सीखना चाहिए कि एक इंसान को एक्सेप्ट पढ़ाई एंड उन स्टफ से हटके भी जो एक नेचुरल मॉरल्स होते हैं या जो मॉरल वैल्यूज होती है, जो इंसान की जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे जो उसको होनी चाहिए, एटिक्वेट जैसे हम बोलते हैं, एक नेचर होता है, वो कैसा होना चाहिए, वो एज अ पर्सन लोगों को बहुत मोटिवेट करते थे. He was absolutely a divine personality. He was absolutely a very charming personality who can motivate like each and every single person. उनका एक और बहुत अच्छा फैक्ट है. We all know about J.R.D. Tata. तो what happened कि I really don't know the exact place where they were going, but they were going somewhere. They were coming. They were coming to India. They were coming to India. Yes, thank you, ma'am. They were coming to India, and there was a fact that Swami Vivekanand ji suggested to open this iron and steel industry to J.R.D. Tata, and then as we can see that at which place today Tata is standing. So these were some facts, and we should always be getting motivated to these sort of people, each and everyone, not only Swami Vivekanand ji, but there are many more freedom fighters, so we should learn from them. Thank you so much. शुक्रिया वेदांश हमारे बीच इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए. Krishna Kanhaiya Goyal sir, a dynamic BTech graduate with a stellar academic record and 5-time GATE qualifier. As a college topper, Krishna sir secured placements in prestigious organizations like TCS and Airport Authority of India. Currently, he contributes his expertise to the advancement of Delhi Metro Rail Corporation as an assistant section engineer, showcasing his commitment to excellence in the field. Just as Swami Vivekananda surprised the world not only with his knowledge but also with his spirituality and became a role model for the youth. In the same way, Krishna sir also not only worked in the higher institutions of the country with his knowledge but also remained spiritually active and developed his personality. Also gave a separate identity. Today, we will learn something from sir's experience and try to adopt in our life. Sir, I request you to please come up on the stage and shower your blessings on us.
Good afternoon, students and faculty members of IIMT Management. So, happy National Youth Day to all of you. Wishing you a happy National Youth Day. So, यहाँ पे मैंने कई सारा प्रस्तुतिकरण, कई प्रेजेंटेशन देखी, and last one was drama, राहे. So, इसमें यही दिखाया गया है कि हम किधर जा रहे हैं, ना? किस गली जा रहे हैं, ना? हम सॉन्ग I have heard, हम किस गली जा रहे हैं, ना? So, हम आए कहाँ थे, करने क्या आए थे, क्या कर रहे हैं? So, right now we are on this stage. हम जीवन के इस ऐसे पहलू में हैं कि हमें करना क्या है, because we have a very higher responsibility, है ना? और with the same time हमें पढ़ना भी है, बहुत कुछ करना भी है, youth भी है, हमें मजा भी करना है, ना? Before coming to here, so I also told कि जो कुछ भी हम प्रेजेंट करें वो पैलेटेबल फॉर्म में हो, है ना? हमें अच्छा भी लगे और इंटरेक्टिव भी, और कुछ मजा भी आना चाहिए, ना? बोरिंग सा ना लगे, ना? तो जीवन में हम देखते हैं जो भी एक्टिविटी करते हैं, व्हाट वी वांट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, है ना? कुछ मजा आना चाहिए, कुछ अच्छा लगना चाहिए, ना? हैप्पीनेस वी आर सर्चिंग, है ना? वी आर प्लेजर हंट, हमें आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, है ना? सो यूथ है जो हम जिस एज में हैं, है ना? तो यूथ पे इसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी ऑल आर सीकिंग दिस हैप्पीनेस. सो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस. सो हम जिस कंट्री में है उस कंट्री का नाम क्या है? भारत, है ना? भारत का मतलब क्या है? कोई बताना चाहेगा? एनीवन नोज अबाउट दिस भारत? जो ज्ञान में रत हो. यस, नाइस. भारत, अगर हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, भा प्लस रत, है ना? तो भा का मीन्स क्या है? नॉलेज. और रत जो हमेशा उसकी खोज में लगे रहते हैं, उसमें डबटेल रहते हैं. तो दिस इज नोन एज भारत. इसको हम क्या बोलते हैं? भारत. तो भारत वो भूमि है जहां पे सभी लोग हैं वो ज्ञान की खोज में लगे हैं, उसको जानने में लगे हैं. एंड इंडिया इज फेमस फॉर इज कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी. जैसे पूरा विश्व अगर हम देखते हैं ना, तो पूरा विश्व है, डिफरेंट कंट्रीज है, वो डिफरेंट चीजों के लिए फेमस है. अगर हम मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो मिडिल ईस्ट किसके लिए फेमस है? ऑयल इंडस्ट्री के लिए. अगर जर्मनी जाएंगे तो किसके लिए फेमस है? अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए. वी आर यूजिंग इन आवर DMRC डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, रिले एंड ऑल. स्विट्जरलैंड जाएंगे तो स्विट्जरलैंड किसके लिए फेमस है? मूवी शूटिंग के लिए. स्विट्जरलैंड स्विच वॉचेस के लिए. वैसे ही जो हमारा इंडिया है, भारत है, जिसके हम वासी हैं, जिसके हम निवासी हैं, वो किसके लिए फेमस है? अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्म के लिए. इंडिया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ होल वर्ल्ड. पूरे संसार का स्पिरिचुअल कैपिटल है. तो यहाँ पे बाहर से लोग पढ़ने आते थे. यहाँ पे नालंदा जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसमें मोर देन 100 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे. मोर देन 100 डिफरेंट ब्रांचेस होती थी. सो मास्टर्स करने लोग बाहर से यहाँ पे आते थे, ना? सो वी हैव अ वेरी रिच कल्चर, है ना? तो ये देश है ना, जवानों का है, वीरों का है ना? इंडिया की जो पॉपुलेशन, इंडिया इज अ यूथ कंट्री. यहाँ पे 70% से ज्यादा जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो यूथ है. 35 साल से नीचे जिनकी एज है, 15 to 35 ईयर ओल्ड. सो वी आर यूथ कंट्री, है ना? और हमारा देश है बहुत फेमस है ना. जैसे कई सारे गाने सुनते हैं हमने ना, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, है ना? बट वी नीड मेड इन इंडिया, है ना? ऐसा ही देश है मेरा, है ना? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है सवेरा, ऐसा देश है मेरा, है ना? सो वी आर द पार्ट, वी आर द मेंबर ऑफ दिस कंट्री, है ना? तो हमारे, और अगर एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग भी देखें तो इंडिया जिस जोन में आता है ना, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, वो गवर्न करता है बृहस्पति, है ना? तो बृहस्पति इज अ गुरु. तो यहाँ पे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल वे से भी देखें तो इंडिया में जो लोग भी जन्म ले रहे हैं, दे आर बाय डिफॉल्ट टैलेंटेड. सो माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमें क्या करना है, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ना. दिस इज ओवर टेक अवे, है ना? कि माइंड को हमें कैसे कंट्रोल करना है ना, बिकॉज वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन दिस टाइम. अपनी लाइफ के हर स्टेज में हम इस माइंड से बहुत क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं ना. सो ये एक हमारा विलन था, मोबाइल फोन, है ना? तो मोबाइल फोन के साथ साथ और भी कई सारे विलन हैं. तो दूसरा विलन क्या है? ड्रग एडिक्शन, है ना? जो आज के टाइम में बहुत प्रिवेलिंग प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में, इंटॉक्सिकेशन, है ना? 3 से 6 करोड़ रुपए व्यक्ति क्या कर रहा है, एक दिन में इंडिया में कंज्यूम हो रहे हैं ना.
एक दिन में 3 से 6 करोड़ के ड्रग्स है वो कंज्यूम हो रहे हैं ना। पर ये ड्रग्स आ कहाँ रहे हैं? पड़ोस की कंट्री से आ रहे हैं ना, उड़ता पंजाब है ना, कबीर सिंह है ना। तो देखिए क्या हो रहा है ना। ये सब सारी स्ट्रैटेजीज है। हमारा देश जो है वो क्या है? यूथ है ना। और यूथ को अगर डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अगर उसको गलत कामों में एंगेज कर दिया, अगर कोई एक व्यक्ति ड्रग एडिक्ट बन गया है ना, तो ड्रग एडिक्ट बनने के बाद क्या होगा? प्रोग्रामिंग करेगा वो, एमबीए मैनेजमेंट करेगा वो, आर्मी में जाएगा, तो कहीं कुछ करेगा ही नहीं, तो पूरा देश खत्म है ना। फिर क्या करेंगे? जो करना है वो कर सकते हैं। सो पैरालाइज कर दिया जा रहा है यूथ को है ना, कन्वर्ट्स देम इनटू ज़ॉम्बीज है ना। इस तरह से लोग पागल होके घूम रहे हैं ना। सो ये स्मगलर्स है वो आपको मिलेंगे कहां पे? सो ये अभी ये हमारे पास ये ड्रग्स है वो आते कहां पे? सोसाइटी में है ना। ये ड्रग्स है वो आएंगे कहां से ना? तो ये कई सारे स्मगलर्स है वो घूमते रहते हैं ना, सोसाइटी के बाहर, कॉलेज के बाहर भी मिल जाएंगे जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं। सो इन सब का इफेक्ट क्या आ रहा है? इन सब का इफेक्ट आ रहा है कि लोग अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो भूल जा रहे हैं ना। इवन तो कॉर्पोरेट्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि लोगों को कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है ना। और सॉल्यूशन समझ में नहीं आने से क्या है? बाहर जाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, और स्मोकिंग को क्या किया, एक अपना ऑप्शन बना लिया है, जिससे क्या होगा कि मेरी इंटेलिजेंस जागृत हो जाएगी और मैं क्या करूंगा? वापस आके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। सो लूजिंग मनी एंड हेल्थ है ना। तो इस ड्यूरेशन में हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट और एज अ फैकल्टी मेंबर और एज अ टीचर है ना। तो हम अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से इन सब चीजों के विषय में बताएं, बिकॉज वी आर एजुकेटिंग फ्रॉम डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव्स है ना। उनको हम कई सारी टीचिंग्स तो दे रहे हैं, बट अगर उनको प्रोटेक्शन का जो नॉलेज है अगर वो नहीं देंगे तो दे विल नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। इवन तो हम बहुत सारा उनके अंदर इंजेक्ट भी कर देंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, बट ये सब चीजें उनके अंदर कैलिबर आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आल्सो गेट सम ट्रेनिंग फॉर दिस कि इन सब चीजों से हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज टीचर्स आर लाइक द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स है ना। उनके पेरेंट्स की तरह ही है ना। यहाँ पे गुरु है, पहली गुरु माता और दूसरा जब वो इस तरह से पढ़ने आए तो वो सभी लोग गुरु हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सबऑर्डिनेट से उनको हम क्या करें? इन सब चीजों से बचाने की कोशिश करें। तो दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम उनको सही नॉलेज, सही ज्ञान इंपार्ट करेंगे ना, देन दे विल फील समथिंग सिक्योर। आज के टाइम में मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक गैप ही देखने को मिलता है ना। तो वो अपनी दुनिया में मगन है और वो अपने जो भी जिस तरह से कर रहे हैं they are presenting them, but whenever we touch their heart, whenever we really taking care of them, so really they will dedicate their life, their what we can say, their trust in you. So this is our responsibility to protect them, to give them proper knowledge. So जीवन है वो aimless हो जा रहा है, इस तरह की situations, इस तरह की चीजों को करने से aimless हो जा रहा है ना। IQ, EQ है वो लोगों का इस तरह से कम हो जाता है। और आज के टाइम में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में। तो ये भी कई सारा प्रिवेलिंग आज के जैसे ड्रामा में उस तरह से स्टूडेंट्स ने भी शो किया था ना कि किस तरह से फ्रेंडशिप बनानी है ना। तो आज के टाइम में ये ओपन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप बहुत कुछ चल रहा है ना, बट ये बहुत ज्यादा डिग्रेडिंग है सोसाइटी के लिए। सो एज अ स्टूडेंट हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पढ़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर कमिंग हियर टू स्टडी ना। और एज अ टीचर हमारा क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वी हैव टू एजुकेट व्हाई एंड व्हाट दे आर डूइंग ना। सबसे पहले उनको क्लैरिटी देनी होगी कि वो यहाँ पे आए हैं यूथ, तो उनको जीवन में करना क्या है ना। उनके जीवन की प्रॉब्लम्स है, वैसा कुछ प्लेटफॉर्म भी हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो ओपनली अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सके। बिकॉज लास्ट टाइम वी आर कंडक्टिंग वन सेशन, पावर ऑफ हैबिट्स इन वन स्कूल इन नोएडा। तो वहां पे हमने एक एक्टिविटी किया बच्चों के साथ है ना। आप लोग भी मे भी अपने स्टूडेंट्स के साथ, मे भी यहाँ पे कई फैकल्टी भी है, तो कुछ आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। जस्ट गिविंग सम आउटलाइन, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बहुत सारे इनपुट्स उसमें डाल सकते हैं। सो हमने एक एक्टिविटी किया, हमने बच्चों को एक ब्लैंक पेपर दिया, व्हाइट ब्लैंक पेपर दिया और एक पेन दिया, एंड वी हैव गिवन 7 मिनट टू एवरीवन। पूरा अराउंड 400 स्टूडेंट्स आर देयर। तो हमने उनको बोला ये एक पेज है और ये पेन है ना, एंड ये अगले 7 मिनट में दिए जा रहे हैं,
whatever you like you may do with this pen and paper in next 7 minutes. इस 7 मिनट में आप जो भी चाहें इस पेन और पेपर के साथ कर सकते हैं। तो कईयों ने अपने बारे में लिखा, कईयों ने हरे कृष्णा को क्या क्या ग्लोरीफाई किया, कईयों ने एक लड़की थी उसने उसका सुंदर से फाड़ के फूल बना दिया कागज का, है ना, बहुत आर्टिस्टिकली वे में। और कई सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी उसमें, है ना, कई लोगों ने खाली पेज ही छोड़ दिया। ये एक्टिविटी हमने इसलिए की थी, उसका पर्पस ये था कि ये जो जीवन है उसका जो कंक्लूजन था कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है यहाँ पे हमें फ्री विल दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो गॉड हैज गिवन अस दिस पेपर, दिस लाइफ, है ना, और हमें फ्री विल दिया है, इसके ऊपर कुछ भी हम लिख सकते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स का लाइक वो 10th 11th और 12th इन स्टूडेंट्स का हमने ये एक्टिविटी किया था। तो उसमें स्टूडेंट्स ने, हमने उसकी पूरी रिपोर्टिंग भी देखी, उसको चेक किया। तो 80% स्टूडेंट्स ने, अराउंड 80% तक स्टूडेंट्स ने उन्होंने प्रॉब्लम लिखी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिफाइनिंग देयर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, उनको डर लग रहा है, जीवन में क्या होगा समझ नहीं आ रहा है ना, माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम 12th में थे, मैं अपना बता रहा हूँ, 12th में थे तो ये सब वर्ड पता ही नहीं थे कि डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है। एक वर्ड पता था सिर्फ, टेंशन होती है। वो भी कब होती है, जब पेपर आता है ना, कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपने हमारा जो साथ में फ्रेंड है उसका इतना स्कोर आ रहा है तो मुझे भी अच्छा करना है ना। तो कुछ एक पॉजिटिव प्रेशर और एक टेंशन रहती थी, है ना। और वो पेपर जिस दिन खत्म होता था वो टेंशन भी क्या होती थी, वही जो एग्जामिनेशन हॉल था उससे बाहर निकलते सारी टेंशन खत्म, है ना। तो कहाँ खेलना है, क्या करना है, सब प्लानिंग बन जाती थी। आजकल बच्चे खेलते ही नहीं है, क्रिकेट खेलते ही नहीं है। पहले तो इस तरह से बैटिंग लगती थी कि ये टीम, 2 टीम है, एक टीम जीतेगी वो क्या करेगी, 100 रुपए देगी, हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को 100 रुपए देगी, और उससे क्या करेंगे, दोनों ही मिलकर कुछ पार्टी कर लेंगे ना। आजकल खेलते ही नहीं है, आजकल मोबाइल में खेलते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, कैंडी क्रश खेलते हैं। सो फिजिकली ऑल्सो दे आर नॉट फिट, है ना। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज से हम बच्चों को जान सकते हैं ना, उनके हार्ट में क्या है ना। इवन दो इफ वी गिव सम फ्रीडम टू देम, देन दे विल एबल टू एक्सप्रेस, वो क्या करेंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे। और एक्सप्रेस करके हम उनकी रियल प्रॉब्लम को जब जानेंगे, देन वी कैन प्रोवाइड द रियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के पहले उनकी प्रॉब्लम तो जानना जरूरी है। तो फॉर दैट वी हैव टू प्रोवाइड सम प्लेटफॉर्म, उनको कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा। यू मे इन्वेस्टिगेट सम प्लेटफॉर्म, है ना। तो कुछ एक अच्छा लोग एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करने से क्या होगा, कुछ एक्सचेंजेस होंगे, है ना। तो हमारे से कुछ अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। Then if we propose some solution to them, कुछ हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तब वो क्या करेंगे, उन सॉल्यूशन को बाय हार्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब सेकंड स्टेज आती है कि सॉल्यूशन हम क्या प्रोवाइड करेंगे। सो फॉर दैट वी आल्सो नीड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, है ना। सो वी मे आल्सो अप्लाई दिस सॉल्यूशंस इन आवर लाइफ एंड वी मे इम्पार्ट द सॉल्यूशंस टू अदर्स लाइफ आल्सो। दूसरों के जीवन में भी क्या कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। And for that what we do, हम करें क्या इसके लिए ना। So for that we have to refer our scriptures, because we have a lot of Vedic wisdom. For that we are known in this world right now also, है ना। We are the capital, the spiritual capital of India, है ना। तो just add spirituality in our life। ये माइंड है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बीच में डिस्कस किया था कि हमारा मन है वो कंट्रोल नहीं होता। So everyone is struggling. I'm also struggling many times. How to control, how to keep mind in my control. So हम सभी स्ट्रगल करते हैं, और ये लाइफ के अलग अलग फेजेस में अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सब लोग एक्ट करते भी हैं, ऐसा है। जैसे अर्जुन भी थे, he was in the battlefield of Kurukshetra, है ना। तो he was the best warrior at his time. But अर्जुन क्या थे, जब युद्ध भूमि में खड़े हैं तो he was not able to perform his duty. अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए वो क्या है, रेडी नहीं है ना। सो हम भी देख सकते हैं कि जीवन के अलग अलग सिचुएशन में, लाइफ के अलग अलग पैरामीटर्स में वी हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज, लॉट ऑफ नॉलेज, बुकिश नॉलेज, एंड वी आर वेरी गुड इन दैट, है ना। एंड दिस इज एप्रिशिएबल आल्सो, है ना। बट जब उनको एग्जीक्यूशन में आता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आता है, तो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट, है ना। अभी लास्ट टाइम मैंने 3-4 दिन पहले ही देखा, एक स्टार्टअप, कोई लेडी है 39 ईयर ओल्ड की, बेंगलुरु की, उन्होंने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया गोवा में। और फिर वो बैंगलोर ट्रेवल कर रही थी, बीच में कुछ सस्पिशियस इस तरह से पाया गया, फिर उसको पकड़ लिया, है ना। फिर अभी मैंने लास्ट टाइम परसों देखा था, कुछ साइकोलॉजिकल उसका इस तरह से इंटरव्यू भी हुआ।
व्हाट इज द रिजल्ट आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम था हस्बैंड के साथ, ऐसा कुछ नहीं। सो वी कैन सी कि एक माँ है, वो कितना, एक कोई स्टार्टअप कर रहा है 39 ईयर ओल्ड में, और उसके पास इतनी अच्छी डिग्री है और कुछ यूएस बिलियंस का उसका बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, अपने 4 साल के बच्चे को खुद मार दिया। माँ जो होती है वो बच्चे की सबसे बड़ी रखवाली करने वाली होती है ना। इवन तो बच्चा रोता है तो माँ, मदर है, शी कांट बियर दिस, है ना। तो हाउ कैन शी डू दिस? कुछ भी सिचुएशन हुई हो, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, चिल्ड्रन के, बच्चे के जीवन में हो रहा है, पति के जीवन में हो रहा है, खुद के जीवन में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन बच्चे को कैसे मार सकते हैं, वो भी 4 साल के बच्चे को। सो वी कैन सी प्रॉब्लम कहां से आ रही है। डिस्क्रिमिनेशन तो है, इंटेलिजेंस तो है ना, बच्चा उसी का ही है ना, बट माइंड कंट्रोल नहीं है ना। तो माइंड कंट्रोल नहीं है तो इस तरह की एक्टिविटीज हो जा रही है। सो वी मे आल्सो लर्न दिस थिंग, है ना। हम सबको ये चीजें सीखनी चाहिए, एंड दिस इज टोटली आवर रिस्पांसिबिलिटी, ये हमारा रिस्पांसिबिलिटी है। तो जस्ट वर्क ऑन आवर इनर सेल्फ, हमें खुद के ऊपर क्या करना होगा, वर्कआउट करना होगा, एंड फॉर दैट वी गेट दिस ह्यूमन लाइफ। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, दिस इज अ रिस्पांसिबल लाइफ। इसमें हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, वी कैन कार्व आवर डेस्टिनी इन दिस ह्यूमन लाइफ। सो दिस इज द बिगेस्ट रिस्पांसिबिलिटी, है ना। जो गुरु है उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। इन द स्क्रिप्चर्स इट इज सेड, गुरु न शिष्यात्, पिता न शिष्यात्, माता न शिष्यात्। हमें जब तक गुरु नहीं बनना चाहिए, जब तक माता नहीं बनना चाहिए, जब तक पिता नहीं बनना चाहिए, जब तक हम अपने अंडर जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन ना दे पाए। So this is our responsibility. Guru word is a heavy. गुरु का वर्ड, गुरु का मतलब ही क्या है, हैवी। गुरुत्वाकर्षण तो हैवी है। So ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मटेरियल एजुकेशन देने के साथ साथ उनको मेंटली स्टेबल करना, इंटेलेक्चुअली उनको सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड करना, स्पिरिचुअली उनको अपग्रेड करना, है ना। आईक्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन इमोशनल कोशिएंट है वो लोगों का क्या हो रहा है, आजकल गिर जा रहा है। इमोशंस है ही नहीं। We can see by this example, उस मदर में इतने इमोशंस नहीं कि अपने बच्चे को मार दिया ना। इवन तो किसी माँ को बच्चे को थप्पड़ मारने में भी क्या होता है, बहुत कष्ट होता है ना। इवन तो मेरी माँ ने कभी भी मुझे आज तक, बचपन से लेके कभी तक भी एक थप्पड़ नहीं मारा है ना। So we can see, इमोशंस लोगों में खत्म हो गए हैं, and how they will deal their employees in company. Even she is not treating her son in this way. तो वो अपने रिलेशनशिप में किसी भी पैरामीटर में ना, वो कैसे इन सब चीजों को सस्टेन कर पाएंगे, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर पाएंगे ना, माइंड का क्या उनका स्ट्रक्चर रहा होगा। सो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हर साल आते हैं ना, एवरी ईयर, है ना। तो उन सबको कैसे कार्व करना है, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वी कैन डिफाइन, वी कैन डिसाइड देयर डेस्टिनी ना। तो हमारा एक बहुत बड़ा रोल है ना। आई अप्रिशिएट माई टीचर्स इन माई लाइफ, because they have worked me a lot, है ना। they have guided me in a proper way, है ना। तभी मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ा आज तक जीवन में। I have cracked GATE 5 times, है ना। फिर DMRC में भी सिलेक्शन हुआ, स्कूल को भी टॉप किया, कॉलेज में मैंने 8 सेमेस्टर को टॉप किया, and right now some teachers are also in contact with me, so they have worked a lot of me. I really appreciate, है ना, कि मैं एक अच्छी पर्सनैलिटी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो I feel grateful to them. इवन तो मैंने उनको कुछ पैसे नहीं भेजे कि DMRC का सैलरी आ रहा है तो 1 साल का, 1 महीने का सैलरी आई हैव गिवन टू देम, बट आई फील सम ग्रेटिट्यूड फॉर देम, एंड दे आल्सो फील गुड व्हेनेवर दे मीट मी। सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर यू। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सेशन। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में ऐड करिए, जस्ट गिव सम टाइम फॉर दैट एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उसके लिए भी हम कई चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज this session is just like a interactive session, है ना। one platform it is providing, है ना, OTP, one time program, है ना। but what we may do, this is just a acronym of today, है ना। what is the takeaway of today's session, है ना। this is GPS. find out first of all over GPS, हम कहाँ पे है ना। तो G denotes achieve life goals, हमें अपने जीवन के क्या करने हैं, goals को achieve करना है ना। And P denotes to be a strong personality, हमें एक strong personality बनना है, and then study nicely, है ना, हमें study अच्छे से करना है। So right now we have a lot of things to do. ये तो जैसे एक छोटा सा presentation था, we have made especially for students and teachers also, faculty.
सो वी आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग्स और स्क्रिप्चर्स से हम किस तरह से शास्त्रों को सीख सके, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग, है ना, भारत है उसके पास सब कुछ है ना, बट हमें उसको एक्सेस करना होगा, है ना। एक्चुअली में क्या है, स्पिरिचुअलिटी में और मॉडर्न एज में कुछ लैकिंग कर रहा है, कुछ मिसिंग लिंक है, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, इसलिए वो फ्लो नहीं हो पाता है ना। जैसे सपोज क्या है कि एक जंगल है, उसमें आग लगी है ना, और उसके पास में कुछ डिस्टेंस पे समुद्र है ना, और समुद्र में क्या है, पानी है ना। तो समुद्र में तो पानी है और जो आग लगी है जंगल में आग लगी है, लेकिन कोई कैरियर नहीं है जो वाटर को उस फॉरेस्ट तक पहुंचा सके। अगर वो पानी समुद्र से जंगल में आ जाए किसी तरह से ना, तो क्या होगा, सारी की सारी जो आग लगी है वो क्या होगी, बुझ जाएगी ना। This fire, this blazing fire with this blazing forest fire will be extinguished, है ना, by the abundance amount of the ocean water, है ना। But वो कैरियर के मिसिंग लिंक है, तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना। अगर पाइपलाइन कनेक्ट हो जाए या बादल आ जाए, वो क्या करे कि पानी को उठा के उस जो भी जहां आग लगी वहां पे प्रोवाइड कर दे, देन जितनी भी आग है वो क्या होगी, बुझ जाएगी। तो सेम थिंग इज दैट, वो मिसिंग लिंक क्या है जो हमें इस वैदिक विजडम को एक्सेस करने से रोकता है ना, उसको हम पैलेटेबल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सके। तो वी हैव सम कोर्सेज, स्क्रिप्चर से बेस्ड कोर्सेज विद टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्रेंशियल लॉजिक, रीजनिंग, कि हम उनको कैसे समझ सके एंड हाउ कैन वी इम्प्लाई इन आवर लाइफ। So we have different courses also, you know, small courses. So you may also participate in them and learn a lot of things from them. So this is a small quiz also, tiny.cc/IQ, EQ and SQ. तो आप इसको भी दे सकते हैं, तो you will get some idea about this. And I will show you some courses which we are conducting. Just sound is not connecting, but you may just get a little. So these are some problems, you know, that modern time is facing. Maybe as a person we are also facing all this thing. ये हमें जीवन मिला क्यों है? What is the reason behind it? Why do I fear death? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? How to control the mind? Who am I? You know, struggling. Curiosity is always there. And we are not finding the real answers, even though we have a lot of questions in our life, you know. So first quest, begin the quest that who am I, you know. By divide, where dwells the answers we seek, with the help of those who flourishes in the pursuit of truth. सत्य क्या है, हम कैसे जान सकते हैं? How can we come out from all the problems, you know, discover yourself. तुम्हें खुद को खोजना है ना। These are some sessions we are conducting कि हम रियल में कौन है, what is my real identity, why this universe is created, what is the manual of my life, what are the solution of all the problems which I am facing in my life, what are the real eternal love, and where we get this. If we have intelligence thing, so tackle challenges within you. सबसे बड़ा challenge है challenges around you, struggling in relationship. We need the right vision. Being in this world with all these difficulties we are facing, and we can rise from it. You know, different scientists, they are also saying. Albert Einstein also saying. This carving. Gautam Buddha. So if you want to be happy in our life, then first of all we must understand ourselves and discover yourself. If we find out the way that who am I, अगर हम खुश रहेंगे तब हम किसी को खुशी दे पाएंगे, है ना, उसको हम रियल में हैप्पीनेस दे पाएंगे। कोई व्यक्ति है आपसे आके मांगेगा कि मेरे को 2000 रुपए दे दो, तो पॉकेट में 2000 रुपए होने भी तो चाहिए ना हमारे। तो whenever we have 2000 rupees या 1 लाख रुपए होंगे तब 2000 देंगे। अगर हमारे पास 2000 रुपए है ही नहीं,
100 रुपए है, तो how can we give this 2000 rupees to that person? So whenever we have this wisdom in our life, then we can inculcate this wisdom to others, है ना? And this is the need of an hour. ये need है ना. Also face the same thing, है ना? जब हम भी इस तरह से कई सारे सेशंस करते हैं, स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में भी जाते हैं, and regularly some students are connecting with us and they are taking proper guidance, and we are also taking guidance from our seniors, ना? So in last 2 years, whatever I have seen कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ना? Everyone is searching for this, है ना? इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को अपने जीवन में हो रही है और उनको जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा जिससे वो उसको एक्सप्रेस कर सके। जैसे आज वो गाना गा रहे थे ना, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज, है ना, गिव मी अनदर चांस व्हेन आई ग्रो अप वंस अगेन, है ना। सो हाउ कैन दे गेट द चांस? दिस ह्यूमन लाइफ इज अ चांस, बट इफ दे आर नॉट यूटिलाइजिंग, देन दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर लाइफ। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट नो वेयर वी आर लीडिंग और हम कहाँ जा सकते हैं, तो हम सब पे इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो विद दैट नोट I'm just concluding the session कि हमें करना क्या है। First of all, we must, if you like, then you may enroll some courses. We have some management courses also. These are free of cost, no charging for that. Self management, how can we manage self? हम खुद को कैसे manage करें? और first of all, we must understand who am I, है ना? Self है कौन? और हम उसको कैसे manage करें? Relationship management, relationship को कैसे manage करें, है ना? और anxiety management, stress management, distraction management, मिस्टेक मैनेजमेंट, हमने मिस्टेक भी कर दी जीवन में, बहुत सारी गलतियां हमने की है ना, टू err is human, है ना, तो उन मिस्टेक्स को हम कैसे मैनेज करें। कई लोग होते हैं वो गलतियां करते हैं, उनको पता है कि ये गलतियां कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं वो गलतियों में इतना डूब जाते हैं कि खुद को भी माफ नहीं कर पाते। सो हमें कहाँ स्टैंड करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो दीज टाइप ऑफ सेशंस वी हैव अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर दैट। सो इफ यू लाइक, देन वी मे आल्सो कंडक्ट इन अपकमिंग टाइम विद द परमिशन ऑफ द respective faculty or teachers. So यही है कि हम अपने को एक अच्छा पर्सनालिटी कार्व करें, तो तभी इस यूथ जो डे है, नेशनल यूथ डे है, उसको हम रियल में सेलिब्रेट कर पाएंगे ना। एंड वी ऑल आर यूथ, whatever age we have, but we all are youth because we are not this body, we are the soul. हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा क्या है? नव यौवनम च, कृष्णा सेज इन द भगवत गीता, वो हमेशा क्या है? नव यौवन है ना, तो नवीन है, नव यौवन है। सो वी ऑल आर यंग, है ना। सो वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड सेलिब्रेट दिस यूथ, नेशनल यूथ डे every day in your life. Just give something new in you, find new in you, practice this and live your life with all happiness. And thank you so much. Hare Krishna. मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि का साहित्य धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन किया और युवाओं को अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहने की सलाह दी। धन्यवाद।